Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So today in this series, we are going to learn some words that starts with the letter S. Yeah. So today we are doing the 19th video of this series. In case you have missed any of the previous videos, you can always go and watch it from the link that I have included in the description section of this video and even from the top right corner of your screen. Okay, so if you are already subscribed to the channel and watching this series, do let me know that how this series is going. Are you learning words which you haven't learned before, right? Is it helping you anyway, right? And if you are new to the channel, then please watch it and let me know in the comment section that did you like it or not. And please don't forget to hit the subscribe button because it really motivates me. So now without further ado, let's start with the today video and watch the video till the end. Why? Because every word is important. Yeah. Now without wasting much of your time, let's continue with the first word for today, and that is sagacious. Now sagacious is a very good word and it's an adjective. Okay. Uh, it means clever, cunning, discerning, judicious एंड वाइज. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सेगेशियस का मतलब होता है ऐसा इंसान. ठीक है, ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड काम आता है जो काफ़ी सोच समझ के कोई डिसीजन लेता है. ठीक है, काफ़ी सोच समझ के कोई एक्शन करता है. ठीक है, जिनके पास एक गुड जजमेंट, प्रैक्टिकल विजडम होती है. राइट, दैट टाइप ऑफ पर्सन कैन बी रिफर्ड एज सैगेशियस. ठीक है, let's see the example. In times of crisis, his sagacious leadership always steered the team in right direction. Steered मतलब एक right direction की तरफ टीम को पुश करना, ड्राइव करना. ठीक है, और sagacious का यहाँ पे मतलब हुआ कि एक गुड जजमेंट वाला, प्रैक्टिकल विजडम, काफ़ी एनालाइज करके किसी इशू को सॉल्व करना डिस्क्राइब्स अ sagacious person. For example, if you have watched that Netflix web series called Suits, right? तो उसमें जो करेक्टर्स हैं लाइक हार्वे स्पेक्टर या फिर जेसिका पियर्सन, दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ सेगेशियस पर्सन. दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेगेशियस. ठीक है, सो अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखें हैं तो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे. ओके, because why? These characters are very intelligent, they are very wise individuals. ठीक है, जो भी डिसीजंस लेते हैं काफ़ी सोच समझ के, लॉन्ग टर्म सोच के, which is beneficial for them and their team, their company. तो इस तरीके की लीडरशिप को हम सेगेशियस डिस्क्राइब करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, the second word for today is sanguine. Sanguine is again an adjective. It means a very optimistic, hopeful पर्सन. ठीक है, ब्लडी भी मैंने यहाँ पे लिखा है, और ब्लडी इसलिए लिखा है क्योंकि एक इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है जो मैं आपको बताती हूँ. तो सैंग्विन की दो मीनिंग्स आती हैं. ठीक है, फर्स्टली इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन जो हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है. ठीक है, हु इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनी थिंग इन लाइफ. ठीक है, बहुत ही होपफुल एटीट्यूड होता है जिनका, दोज पर्सन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सैंग्विन. ठीक है, और दूसरा मीनिंग सैंग्विन का ये होता है, समटाइम्स इट इज़ यूज टू रिफ़र टू अ डीप रेड कलर. जो ब्लड का कलर होता है उस कलर को कभी कभी हम इस पर्टिकुलर वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ सैंग्विन. तो कभी आपके एग्जाम में कोई कॉन्टेक्स्ट में ब्लड रेड कलर की बात हो और ये वर्ड यूज़ हुआ हो तो ये सेकेंड वाला मीनिंग रेफर करना आप. ठीक है, इन केस इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब सम पॉजिटिव सिचुएशन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, होपफुल एटीट्यूड वाला पर्सन, चीयरफुल कोई इंसान, तो दैट इज सैंग्विन. वहाँ पे पॉजिटिविटी वाला कॉन्टेक्स्ट यूज होगा. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. Despite the challenging economic conditions, the CEO presented a sanguine vision for the company's future growth and expansion. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला मीनिंग यूज़ हुआ है जहाँ पे sanguine का मतलब होता है एक ऑप्टिमिस्टिक विजन, एक पॉजिटिव विजन. ठीक है, फॉर कंपनीज फ्यूचर. ओके, I hope you get this. If you have any doubts, feel free to ask them in the comment section. The third word is scintillate. Scintillate is a verb. Okay. It means to be dazzlingly impressive or animated, sparkle, to talk wittily. Okay, तो scintillate
इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि इसका मतलब होता है टू इमिट, है ना, और गिव ऑफ स्पार्कल, ब्राइटनेस, ठीक है, ट्विंकल करना, ठीक है, इन अ वेरी ब्रिलियंट एंड लाइवली मैनर, ठीक है, सो दैट इज सिंटिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जो वर्ड लिखा है टू टॉक विटिली, कोई कोई आपने पर्सन को देखा होगा, राइट, दे आर वेरी इंगेजिंग, दे आर वेरी फुल ऑफ लाइफ और विट विटी नेचर के होते हैं, दे कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज सिंटिलेट, ओके। So let's see the example for scintillate. The fireworks display in the night sky scintillated with vibrant colors and patterns. इसका मतलब हुआ कि they sparkled और they twinkled, क्योंकि आप जब भी पटाखे फोड़ते हो तो ऊपर जाके कितना ब्राइट हो जाता है, इतना सुंदर दिखता है, that is referred as scintillated, ठीक है, okay. Moving on to the fourth word for today, and that is scion. Scion is a noun which means a child, offspring, heir, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, यू इवन चेक इट कि HEIR को अपन क्या प्रोनाउंस करते हैं करेक्टली, इफ आई एम रॉन्ग देन अ यंग मेंबर ऑफ अ फैमिली। वेरी इजी मीनिंग ऑफ सायन, सायन इज समवन, इट रिफर्स टू अ पर्सन who carries forward the qualities of their ancestors or predecessors, ठीक है। कई सारी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन को क्वालिटीज़ को आगे लेके फॉरवर्ड करते हैं, सो दीज आर रिफर्ड एज सायन. So the scion of the renowned chef opened his own restaurant, hoping to live up to his family's culinary reputation. Sorry. So यहाँ पे scion का मतलब हुआ, देखो, scion refers to basically a child, or a kid who will represent his family later on. ठीक है, for example in Ambani's, now they will be resigning off sometime, and their kids or their children will come forward and take up the business and carry forward the business qualities that the family carries or reputation that they carry. So scion का मतलब हुआ the child or a person who carries forward the ancestors qualities or characteristics, ठीक है, okay. Moving forward to the fifth word, and a very beautiful word that I like, and that is Shibboleth. Shibboleth is a noun, and it is a catchphrase, it's a trademark or a slogan. ठीक है, तो कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, तो उसमें अपन क्या ट्रेडमार्क्स और ब्रांडिंग, ब्रांड लोगो, ये सब यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स और डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर कंपनीज. सो समथिंग दैट सिम्बलाइजेज, ठीक है, एनी लिंग्विस्टिक्स और कल्चरल मार्क, ठीक है, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करने वाली चीज़ को हम शिबलत बोलते हैं. लेट्स सी द मीनिंग. Example, the company Shibboleth quality above all was ingrained in its culture and marketing strategy, emphasizing their commitment to producing high quality products. ठीक है, सो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ टैगलाइन है, कुछ स्लोगन है, कुछ लोगो है, राइट, विच डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स. तो यहाँ पे ऐसी कंपनी है जिसका शिबलत और स्लोगन है क्वालिटी अबव ऑल, विच सिग्निफाइज कि दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद देयर products quality or service quality, ठीक है. So it is differentiating one company from another. Okay, moving on to the sixth word for today, and that is skittish. Skittish is again an adjective. It means easily frightened, nervous, jumpy, volatile और changeable. इसकी काफ़ी सारी meanings हैं, ठीक है. So it is basically used to describe something that is easily frightened. नर्वस हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब कोई नया इंसान आ जाता है, जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई नया इंसान आ जाता है तो कैसे एंशियस से हो जाते हैं, अपनी मम्मी के पास जाने लगते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ क्वालिटी और दैट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रिफर्ड एज स्किटिश, ठीक है. एंड second meaning of skittish is that it can also be used to describe something that is very unpredictable, ठीक है, something which is prone to quick changes in behavior और mood. किसी किसी का behavior और mood कितना ऊपर नीचे होता रहता है, दिन में ही 10 बार चेंज हो जाता है. So that can be referred as skittish. जहाँ पे मैंने लिखा है ना volatile और changeable,
इट मीन्स डायनेमिक होता है काफ़ी, तो उस चीज़ को हम स्किटिश रेफर कर सकते हैं. द न्यू रेस्क्यू डॉग वॉज क्वाइट स्किटिश अराउंड स्ट्रेंजर्स, ऑफन हाइडिंग व्हेन विजिटर्स केम टू द हाउस. एज आई टोल्ड यू विद द किड्स इट इज़ सिमिलर विद पेट्स, डॉग्स और अदर एनिमल्स. ठीक है, कि स्ट्रेंजर कोई आता है तो वो थोड़े से स्किटिश हो जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं. Okay, moving on to the seventh word for today, and that is sloth. Sloth is a noun which means laziness, sluggishness और lethargy. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा ये वर्ड यूज़ करते कि क्या पूरे दिन एक सांड की तरह पड़े रहते हो, स्लॉथ की तरह. मतलब आई एम नॉट रेफरिंग सांड एज स्लॉथ, या बट स्लॉथ की तरह पड़े रहते हो, इट विच मीन्स यू आर वेरी लेजी, वेरी लेथार्जिक. किसी को कोई आपको देखे तो वो खुद लेजीपन उसके अंदर फिलअप हो जाए, इतने लेजी हो आप. सो समवन हु इज़ दैट लेजी can be referred as a sloth. Okay, so it is basically a characteristic or a trait or human behavior. ठीक है, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा पूरे टाइम बस लेजीनेस के शिकार रहते हैं वो, है ना. सो दे कैन बी रिफर्ड एज स्लॉथ. मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, सी दिस कैट, his sloth-like work habits led to frequent reprimands from his boss for not meeting deadlines. ठीक है, सो reprimands मतलब डांट, फटकार. ठीक है, फ्रॉम हिज बॉस फॉर नॉट मीटिंग द डेडलाइंस. इफ़ यू आर लेजी, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो ऑब्वियसली आपके असाइनमेंट्स, आपके काम डिले होंगे एंड यू विल गेट अ गुड वन फ्रॉम योर बॉसेस, टीचर्स और एनीबडी. ठीक है, पेरेंट्स. And even amazing fact is this, that sloth is one of the 7 deadly sins in Christian ethics. I just read this and I just wanted to tell you कि 7 deadly sins होते हैं Christian ethics में, and sloth, being lazy, is one of that. Okay, so let's move forward now. The 8th word for today is sobriquet. Sobriquet is a noun. It means a nickname or an assumed name. ठीक है, बहुत सारे friends का हम निक नेम रख देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक. ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर नेम विच वी यूज़ इन एन इनफॉर्मल वे, ठीक है, इज़ रिफर्ड एज सोब्रुके. तो किसी किसी को हम बड़े ही अफेक्शनेट, बड़े प्यार से कोई नाम देते हैं. ठीक है, किन्हीं किन्हीं को फ़नी वे में हम वो बुलाते हैं. ठीक है, और कभी कभी सोब्रुके एक डेरोगेटरी भी हो सकता है इन नेचर. ठीक है, तो डेरोगेटरी का मतलब ये होता है कि अपन बहुत ही किसी किसी का मजाक उड़ाने के लिए कोई उनका निकनेम रख देते हैं. इट स्पेशली हैपन्स विद किड्स इन स्कूल. ठीक है, तो वो डेरोगेटरी नेचर का भी कभी कभी हो जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. हिज फ्रेंड्स अफेक्शनेटली कॉल्ड हिम बियर एज अ सोब्रिक्वे ड्यू टू हिज लव फॉर आउटडोर एडवेंचर्स एंड कैंपिंग. ठीक है, सो यहाँ पे ये सोब्रिक्वे एक एफेक्शनेट और एक प्यार भरे तरीके से रखा गया है नाम, दैट इज बियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 9th word for today, and that is sophomore. Sophomore is a very good word that I learned, है ना. It's a noun and it refers to a second year student. For example, 3 साल का कोर्स अपन कोई डिग्री करते हैं, so first year students are called freshers. ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर में होते हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कहलाते हैं. बट व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर स्टूडेंट? देयर इज अ वेरी गुड नेम वर्ड फॉर दैट, एंड दैट इज सोफोमोर. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर वर्ड इज बेसिक नॉर्मली यूज्ड इन फॉरेन कंट्रीज लाइक USA और UK. यहाँ इंडिया में बहुत कम सुनने मिलता है, इसलिए शायद हमें पता भी नहीं था. बट आई गॉट टू नो दिस एंड आई होप कि आपने भी पहली बार सुना हो. इफ़ येस, देन प्लीज़ लेट मी नो दैट यू लर्न समथिंग गुड टुडे. So sophomore can be referred to a second year student, college student. Sarah, a bright and enthusiastic sophomore majoring in biology, was excited to start her second year of college and explore more advanced coursework. ठीक है, तो इसका मीनिंग बहुत ईजी है, तो इसका एग्जाम्पल समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मूविंग ऑन टू द 10th word for today, and that is sporadic. Sporadic is an adjective which means occurring here and there, now and then, scattered. ठीक है, सो बेसिकली डिस्क्राइब समथिंग दैट ऑकर्स वेरी इनफ्रीक्वेंटली, कभी भी हो जाता है, वेरी इरेग्युलर टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, या फिर बहुत ही स्कैटर्ड हो, आइसोलेटेड हो. ठीक है, रादर देन एक कंसिस्टेंट, एक रेगुलर पैटर्न हो. ठीक है, तो रेगुलर पैटर्न जब किसी चीज़ का नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इरेगुलर है शेड्यूल,
तो स्पेरेडिक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल रेन. ठीक है, ये रेन का ही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, देखो आप. द स्पेरेडिक रेन शावर्स थ्रू आउट द वीक मेड इट डिफिकल्ट टू प्लान आउटडोर एक्टिविटीज. Obviously this happens. So because rain is very infrequent and irregular these times, so that's why यहाँ पे sporadic use हुआ है. Moving on to the 11th word for today, and that is spurn. Spurn is a verb which means to reject with contempt या disdainful rejection. ठीक है, so it basically describes something when you refuse or reject something, ठीक है, or disregard something and you do it very intentionally, then it is referred as spurn. ठीक है, it can apply to tangible objects as well, जो आप देखते हो, you know, materialistic things, जब उसको आप intentionally हटा देते हो, ठीक है, तो that can be referred as spurn. So it is applied to tangible objects, it is applied to different opportunities, for example job opportunity. ठीक है, इट कैन इवन अप्लाई टू सजेशन, जब आप किसी का सजेशन या एडवाइस जानबूझ के रिजेक्ट कर देते हो. ठीक है, एंड इवन इट कैन बी डिस्क्राइब फॉर, इट कैन अप्लाई टू पीपल. ठीक है, तो इट इज़ अप्लाइड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट. एग्जाम्पल इज द एक्टर स्पर्न्ड द रोल बिकॉज ही फाउंड द स्क्रिप्ट टू बी पुअरली रिटन एंड अनइंटरेस्टिंग. ठीक है, सो इंटेंशनली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया टू प्ले द रोल. ठीक है, मूविंग ऑन टू द 12th वर्ड फॉर टुडे, and that is succinct. Succinct is an adjective which means brief, precise, concise or direct. Very easy meaning and very easy to understand कि एक बहुत ही concise, brevity is one word. succinct का वो क्या होगा, अपना synonym होगा. ठीक है, which means very brief, very concise, to the point चीज़ें. ठीक है, let's see the example. The professor's lecture was a succinct yet informative, covering all the key points in just 30 minutes. Very concise, छोटा, 30 minutes में cover कर ली सारी चीज़ें. informative था और अच्छा भी था, boring भी नहीं था. So that's why the word is used here. Moving on to the 13th word, and that is sumptuous. Sumptuous is an adjective which means magnificently luxurious, costly. ठीक है, something that is extremely luxurious, lavish. ठीक है, जो देख के पता चल जा रहे इसमें बहुत खर्चा हुआ है, ये बहुत महंगी चीज़ है, and which you know conveys richness or extravagance. ठीक है, high type of quality, so that is referred as sumptuous. देखो, the bride wore a sumptuous wedding gown adorned with intricate lace and sparkling crystals. तो देख के ही पता चल जाता है अरे बहुत महंगा है, बहुत महंगी चीज़ है, ये बहुत ही लग्जूरियस चीज़ है. सो उसको हम sumptuous बोल सकते हैं. Moving on to the 14th word for today, that is supple. Again a very common and regular word. It's an adjective. It means flexible, lithe or adaptable. ठीक है, तो supple it refers to the quality of being very elastic. कहीं से भी कुछ भी मोड़ दो, बेंड कर दो, खींच खाच लो, ठीक है, पर वो टूटेगा नहीं, और वो एकदम फ्लेक्सिबल चीज़ों को हम सपल बोलते हैं. ठीक है, तो बहुत ही ईजिली बेंड हो जाते हैं, बहुत ही ईजिली उसमें मूवमेंट्स हो जाता है विदाउट एनी रिजिडिटी और स्टिफनेस, तो उसको हम सपल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपल बॉडी. शी वॉज अ स्किल्ड जिमनास्ट विद अ सपल बॉडी दैट कुड परफॉर्म इंट्रिकेट मूवमेंट्स. ठीक है, सो सपल बॉडी मीन्स है फ्लेक्सिबल बॉडी, कहीं से भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जाते हैं. यू मे हैव सीन वेरियस डांसर्स, जब वो डांस करते हैं भाई हाथ कहाँ पैर कहाँ, मतलब इट्स वेरी सपल बॉडी, दे हैव वेरी सपल बॉडी. ओके, moving on to the 15th word for today, and that is swathe. Swathe is a verb which means to bind around, envelop or to bandage. ठीक है, so simply जब हम कोई चोट लग जाती है तो एक फैब्रिक लेके या फिर एक पट्टी लेके अपन बैंडेज लेके उसको कवर करते हैं राउंड 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 राउंड. दैट इज पर्टिकुलरली रेफर्ड एज swathe. ठीक है, कितना छोटा वर्ड है, लाइक ना, कभी यूज़ आप करना, कभी बैंडेज जब भी बांधोगे तो आपको ये वर्ड ज़रूर याद आएगा. ठीक है, सो इट मीन्स इट इम्प्लाइज अ कवरिंग और अ रैपिंग. एक एनवलप की तरह अपन कवर कर दें किसी चीज़ को. ठीक है, तो दैट इज रेफर्ड एज swathe. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लैंडस्केप मनाली जाओ तो स्नो से पूरा कवर्ड हो जाता है, ढक जाता है पूरी लैंड. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज swathe. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द इंजर्ड एथलीट्स लेग वॉज swathed in bandages to stop the bleeding. ठीक है, so I hope you got to learn new words today. Now the assignment part of the day is here. So the 5 words that you have to research and tell me the meaning about it is sanctimonious, which is an adjective, sojourn, which is a noun or a verb, stentorian is an adjective, stoic
is a noun and substantiate is a verb. So these are the 5 words that you have to do for the assignment today. I hope you learned something interesting. And if you are there till now, then thank you so much for watching. I hope you learned something good today. And if yes, then please like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care, stay safe, and yes, happy learning.